So let's start. So this is the first problem solution essay I am going to discuss. Okay. So normally in problem solution essays, they can ask three things from you. They can ask the reasons, and reasons ke karan they can also use the word fact causes. They can also use the word why. Why does it happen? वो भी reasons ही पूछ रहे हैं. And they can also ask the word factors कि what factors are responsible for this. इन सारे words का यही मतलब है कि उन्होंने reasons पूछे हैं. So I hope it is clear. They can ask three things. तीन चीजों में से एक चीज है reasons. Reasons के ये और नाम है जो वो use करते हैं. Causes, why और factors. I'll show you different questions. जैसे यहाँ पे what causes this problem, यहाँ पे causes पूछे. Let's come to the next thing that they ask. In some cases, they ask the problems caused by the situation. तो problems पूछते हैं और पूछते हैं ऐसे problems caused by this. So यहाँ पे एक्चुअली वो नेगेटिव इफेक्ट्स पूछ रहे हैं कि इसके क्या नतीजे हो रहे हैं, मतलब क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे. व्हाट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग कार्स, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. सो पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग. दीज आर द प्रॉब्लम्स. ये कारण नहीं है. दिस इज नॉट व्हाई इट इज हैपनिंग, दिस इज द इफेक्ट. Okay, so the second thing they can ask is problems caused by the situation, which is nothing but negative effects of something. Okay, and the third thing they ask is solutions. Solutions के लिए what can be done for this, what can be done about this problem, what measures could be taken, जैसे यहाँ पे लिखा है. ठीक है, और कुछ words use करते हैं. ये तीन चीजें वो पूछते हैं problem solution ऐसे में. Your first job when you're attempting a problem solution essay is to understand कि उन्होंने कौन सी दो चीज़ें पूछी हैं, क्योंकि वो तीनों की तीनों नहीं पूछते, वो तीन में से दो पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस essay they have asked causes and they have asked solutions. अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर इस ऐसे को अच्छे से करना ना, तो तीनों एसेस, इसको तीन एसेस मान लो, इसको वन ऐसे मानो ही मत. देर आर थ्री कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. द थ्री कॉम्बिनेशंस आर रीजंस एंड सॉल्यूशंस, reasons and negative effects, or reasons and problems and solutions. ये तीन ऐसे मान लो कि एक में आपको पूछा होगा रीजंस बताने और सॉल्यूशंस, एक में पूछा होगा रीजंस एंड इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स. यहाँ थर्ड सिचुएशन है दे कैन आस्क प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल थ्री ऑफ देम. हम एक एक ऐसे तीनों करने वाले हैं. इससे तुम्हारा स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन लेफ्ट इन योर माइंड. That's my plan today. Now, if anyone has any questions regarding my plan, they can ask me. Otherwise, we'll move forward and continue. Is it clear what I just said? कि क्या तीन चीजें पूछते हैं एनालिसिस में? Okay, so let's move forward. Okay, पहले ये ऐसे करते हैं. Quality of life in large cities is becoming worse. Can someone tell me क्यों large cities में like Delhi? दिल्ली का तो बहुत easy है कि क्यों वर्स हो रही है, बताओ. चलो, दिल्ली तो आजकल छाया हुआ न्यूज़ में. Why is the quality of life in Delhi becoming worse? Sir, pollution, Pollution, yes. traffic, हाँ, pollution first, ठीक है. Pollution क्यों बढ़ रहा है? a lot Large of because of large factories. pollution population. हाँ, large population, increasing use of cars. ठीक है. So that is the reason. More and more people are using their own cars. Industrial activity. So इसके कारण pollution बढ़ रहा है. Air quality का खराब होना. We'll not call pollution. अगर उसको ज़्यादा अच्छी language में बोले. So the first major problem, first reason is quality of life is becoming because of um, air quality, lowering air quality, or the quality of air is reducing day by day. और उसका reason है pollution from cars and industrial activity in large cities. जैसे दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं उसके आसपास इलाकों में, तो उसके कारण भी क्वालिटी, एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है. देन एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ कार्स. सो पहला मेरा पॉइंट है डिक्रीजिंग एयर क्वालिटी, एंड इसका रीजन मैंने ये लिखा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ कार्स, use of private vehicles you can write,
or cars, and then you can say increasing industrial activity as well in large cities. So these are the industrial and construction activity also. Construction activity is also responsible for a lot of pollution because जब construction करते हैं तो sand वगैरह यूज होती है वो उड़ती है और वो air की quality को reduce करते हैं. Sorry. So increasing industrial and construction activity, I'll write both. Okay. Any other reason? How is life, quality of life in large cities becoming worse? किस वे में और क्यों? बताओ. इजी है ये टॉपिक, तुम कर सकते हो. बताओ कैसे खराब हो रही है? दिल्ली में रहना पहले से ज्यादा क्यों खराब है? सर जैसे पॉपुलेशन और उसकी वजह से जैसे वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो रहा है तो हाँ, बट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे खराब हुई? हमारी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आया? ओके। है ना? हमारे को सोचो, वेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मैं मानता हूँ, विच इज बैड फॉर द एनवायरनमेंट, मैं ये भी मानता हूँ. बट हाउ डिड इट इम्पैक्ट मी? मेरे को कैसे इम्पैक्ट हुआ? वो तो एयर क्वालिटी के साथ ही हुआ था कि एयर क्वालिटी खराब हो गई. और कैसे मुझे कैसे इम्पैक्ट होता है? हाउ डज इट इम्पैक्ट मी एज अ पर्सन? वाई आई वुड से कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से खराब है. पॉपुलेशन इज अ रीजन फॉर अ वेरी फैक्टर्स, पर पॉपुलेशन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है. और कुछ बताओ. सर अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं आएगा, क्या आएगा? लार्ज सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. यू कैन थिंक, मैंने यहाँ पे सर्च भी मारा है. लेट मी सी दिस पॉइंट्स. ठीक है, चलो पहले यहाँ पे देखते हैं. पहला इन्होंने ओवर पॉपुलेशन लिखा है. ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिटीज हैव बिकम ओवर क्राउडेड. हाउसिंग की प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो रही है. कंजस्टेड रोड, राइजिंग प्राइसेस, वो. तो पहला इन्होंने पॉइंट यही लिखा है, ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन का इन्होंने रीजन लिखा है अर्बनाइजेशन. More and more people are migrating from rural areas to urban areas in search of employment. तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं. इसके कारण सिटीज़ कैसी बनती जा रही है? ओवर क्राउडेड बनती जा रही हैं. इसके कारण सारी चीज़ों पे प्रेशर डल रहा है. एंड इसके कारण क्या इम्पैक्ट हो रहा है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिक्रीज हो रही है? कंजस्टेड रोड्स हो रही हैं, मतलब ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है. राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस है, मतलब हमें ज़्यादा क्या देना पड़ रहे हैं? प्राइसेस, हमारे रेंटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है. पहले मैं दो, लाइक 2 बेडरूम हाउस के लिए जितना किराया देता था, 1 बेडरूम हाउस के लिए दे रहा हूँ. सो माई क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग डाउन. इनसफिशिएंट पब्लिक प्लेसेस, मतलब देर आर नॉट इनफ पार्क्स एंड एवरीथिंग. मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, मतलब क्योंकि जगह ही नहीं है, पब्लिक प्लेसेस नहीं है. तो नहीं, ये पॉइंट लिखा है. अनदर कॉज इन्होंने लिखा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. वो हमने बोला है किस तरीके से, व्हीकल यूज से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन. देखो मेरे तीनों पॉइंट्स थे. आई एम वेरी हैप्पी. तो नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हीकल यूज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है. तो ये इससे ना केवल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड स्ट्रेस भी होता है. अब इन्होंने नॉइज पोल्यूशन बोला है तो इन्होंने क्या ऐड कर दिया? पॉइंट स्ट्रेस, विच इज़ अ गुड वे टू राइट इट. ठीक है. ओके, नाउ टेल मी द सॉल्यूशंस दैट वी कैन टेक टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम. चलो बताओ, देन वी लुक एट इट. हम पहले अपने आप सोचते हैं, फिर तुम बताओ. पहले हम सोचते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पे. व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ? ओवर क्राउडिंग को रोकना है, ओवर पॉपुलेशन को रोकना है सिटीज में. वेरी इजी. क्या करना है? ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है वो सोचो. व्हाई इज ओवर क्राउडिंग हैपनिंग इन सिटीज? यूर ऑल देयर, टेल मी. अभी तो पढ़ा, ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ. बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और हाँ, तो फिर क्या करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट। सिटीज में ना आए लोग? क्या करेंगे? गवर्नमेंट शुड डू व्हाट? दूसरी लोकेशंस पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जहां यस, से और वो दूसरी माइग्रेट हो लोकेशन, रहे वेरी गुड. एंड दूसरी लोकेशंस कैसे होंगे? रूरल एरियाज में. वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोग कहाँ पे ना मूव करें. अर्बन एरियाज में अगर वो एरियाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो लोग सिटीज में मूव नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? इज इट गुड दिस पॉइंट?
यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन। आई वांट पार्टिसिपेशन, थोड़ा और पार्टिसिपेशन करो। यस खुशबू, राइट, बिकॉज ऑफ जॉब, आई एम सॉरी आई डिड नॉट पे अटेंशन टू इट ऑन टाइम। यस, ओके। सेकेंड सेकेंड स्टेप व्हाट कैन वी डू? चलो पहला तो हमने सोचा, अब हम सेकेंड अपना सोचते हैं। देखो मैं ना पहले खुद सोचता हूँ, आई टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी के मेरे पॉइंट्स ठीक हैं कि नहीं, और सम बेटर पॉइंट आई कैन गेट। सो मेरा पहला पॉइंट था ये जो हमने करा। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे बताओ? Spreading awareness so कैन we can save environment. एनवायरमेंट के लिए Uh, कैसे करना है बेटर? व्हाट्स द सोल्यूशन? that public transportation use करने के लिए encourage करना चाहिए. यस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, दैट विल इम्प्रूव। और कार्स वगैरह की दे कैन बी कंजेशन टैक्स, पता है जैसे लंदन में कह रहा मैं ना, दे इन, डू यू नो अबाउट दिस कंजेशन टैक्स इन लंदन? डज एनीवन नो? No, sir. नो? ओके, इट्स अ वेरी वेरी it's a very idiotic tax, but let me show you what it is. It's called congestion tax. ठीक है, सो कंजेशन टैक्स में क्या होता है कि डेली अगर आप 7 बजे से लेके 6 बजे तक, तो आप लगाओ ना, तो इतना देखो कितने पाउंड्स वो लिख रहे हैं, 18 पाउंड पर डे, बस वो आपको गाड़ी निकालने के लिए ले देते हैं। मतलब दे वांट टू रिड्यूस कि पीपल कार में ना जाएं, तो उन्होंने क्या करा हुआ, कंजेशन टैक्स लगाया हुआ है। तो बेसिकली अब वो नहीं चाहते अब दिन के दौरान हो, जब सारे लोग काम पे भी जा रहे हैं, अगर आपको मॉल जाना है आप 6 बजे के बाद जाओ, आप 7 बजे से पहले निकलो। अगर सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ काम वाले लोग जाएं, 7 AM to 6 PM, सो दे हैव अ कंजेशन टैक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये लगाया जा सकता है, अ डेली फी। लाइक अब बस तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस द वर्ड यू शुड नो, अ कंजेशन टैक्स कैन बी लेविड on vehicles. So this will also reduce usage of private vehicles. इससे private vehicles की usage कम होगी। One of your essays in the book is about congestion tax, इसलिए मैंने ये करवा भी दिया। So हम यहाँ पे पॉइंट्स दे रहे हैं ना, पोल्यूशन कम करने के, ट्रैफिक कम करने के। मैं चाहता हूँ तुम इकट्ठे बोल दो, लाइक प्रमोटिंग द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, कॉमा, इंट्रोड्यूसिंग कंजेशन टैक्स ऑन प्राइवेट व्हीकल्स। मतलब समझ में आया? इकट्ठे इकट्ठे, योर पॉइंट्स आर करेक्ट, बट उनको थोड़ा सा इलोंगेट करने के लिए साथ में इकट्ठे एक दो स्टेप्स बना के बना दो। ओके, एनी अदर थिंग वी कैन डू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन सिटीज? रूरल एरियाज को डेवलप करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, पोल्यूशन एंड ट्रैफिक को कम करने के लिए कंजेशन टैक्स लगाना और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना। डन। एनीथिंग एल्स दैट कैन बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज? पर्सन की वेलबींग को प्रमोट करना, जैसे उनको जैसे, हाँ या एक्सरसाइज के लिए उनको बोलना, जैसे वो अपना स्ट्रेस खुद रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ एंटरटेनमेंट। हाँ, पर ये तो लोग खुद करेंगे ना, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये मैं पॉइंट्स मानता हूँ, पर ये तो पता है क्या है, दिस इज नॉट, किरणजीत पता है मैं क्यों इसको रेलेवेंट नहीं पॉइंट मानूंगा? इज इट स्पेसिफिक टू सिटीज कि नहीं? ये पॉइंट हर जगह के लिए सही है कि सिर्फ सिटीज के लिए सही है? हर जगह के लिए। हाँ, तो इट्स नॉट अ पॉइंट रेलेवेंट टू आवर एसेस। वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज। सिटी। तो हाँ, तो हम उस पे फोकस करेंगे, सिटीज में हम कैसे क्या करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, rather than thinking in general. चलो, anyways, we thought of 2 points. Let's see what AI helps us. तो गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करनी चाहिए, विच इज़ आ पॉइंट ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है बाय एनकरेजिंग बिजनेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू मूव टू स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस। दिस वुड रिड्यूस द पॉपुलेशन बर्डन ऑन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो पहला पॉइंट यही है जो हमने बोला, ठीक है? जो तुम सबने बोला था वही के रूरल एरियाज को डेवलप करना। दे हैव नॉट यूज द वर्ड रूरल एरियाज, दे हैव यूज द वर्ड स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज, वी कैन कंबाइन इन सेट। Additionally, authorities must invest heavily in public transportation, such as metro system and electric bus networks, to reduce traffic congestion and pollution. Second point भी इनका हमारे से मैच करता है, मास का जो पॉइंट था उसके साथ बिल्कुल मैच करता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मेट्रो एंड इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क, ताकि पोल्यूशन भी कम हो और कंजेशन भी कम हो। दोनों पॉइंट इससे प्राकल होंगे, तो फिर ये हो जाएगा।
फिर इन्होंने जो पॉइंट्स लिखा है कि वो कुछ और लिखा है, आई डोंट थिंक यू कैन राइट इट। तुम यहाँ पे बोल सकते हो जो हमने बोला, प्राइवेट व्हीकल्स को भी तुम बोल सकते हो, प्राइवेट व्हीकल्स का भी यूज, लाइक वी कैन डिस्करेज द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कंजेशन टैक्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम एग्जाम्पल बोलते हो कि ट्रैफिक, लंदन की एयर क्वालिटी एंड लंदन में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था आफ्टर द कंजेशन टैक्स इन लंदन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, और लंदन में ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक एड्रेस हो चुकी है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंजेशन टैक्स। दैट्स द वे यू कैन राइट इट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बन रही है, यू नो अ सिटी जहाँ पे ये हुआ है और समथिंग। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है एक इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग देनी चाहिए, विच इज़ अ गुड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि रेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू पीपल। ठीक है। विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, ताकि स्लम्स वगैरह क्रिएट ना हो। दिस ऑल्सो रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि सिटीज़ में रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पीपल कांट अफोर्ड अ हाउस एंड दे लिव इन पथेटिक कंडीशन, स्लम एरिया लाइक कंडीशंस। और मैं ये अपनी इंडिया की नहीं बात कर रहा, यू लुक एट इट लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इतने लोग होमलेस है। इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। तो गवर्नमेंट ये चीज़ कर सकती है ज़रूर कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेगी, तो इससे क्या होगा, ओवर क्राउडेड नेबरहुड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, और इट विल प्रमोट जनरली हेल्थियर लिविंग कंडीशंस। दिस इज वन पॉइंट वी कैन ऐड। सो हमारा ऐसे काफ़ी हद तक यहाँ से मैच करता था, द पॉइंट्स ऑल्सो मैच, वी कैन राइट इट। अब हम इसकी फॉर्मेट देखते हैं। देखो, इट्स कॉलिंग इट अ 9 बैंड ऐसे, पर अगर अब तुम इंट्रोडक्शन देखोगे ना, इंट्रोडक्शन में जस्ट 2 सेंटेंसेस हैं, और ऐसे ही मेरी इंट्रोडक्शन होती है। सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। यू रिमेंबर द वे आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक, आई से इट इज ट्रू दैट, और तुमने यहाँ पे बता देना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज इज, यू नो, डिक्रीजिंग। और तुम यहाँ पे, उन्होंने बस उसके लिए थोड़े से ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी यूज़ करी है। फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे हैव यूज द वर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स। सिटीज़ की जगह उन्होंने बोल दिया मेजर अर्बन सेंटर्स, मेजर सिटीज़ की जगह उन्होंने मेजर अर्बन सेंटर्स कर दिया, और ख़राब होने के लिए उन्होंने डिटीरियोरेटिंग वर्ड यूज़ कर दिया। देयर इज नथिंग एल्स दैट दे हैव डन हियर। उसके बाद हम भी यही लिखेंगे कि ये ऐसे डिस्कस करेगा कॉजेस एंड ऑल्सो प्रपोज सम सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो ये ऐसे बताएगा कि क्या कारण है इस चीज़ के, और प्रपोज करेगा सॉल्यूशंस। वी विल ऑल्सो राइट अ 2 सेंटेंस इंट्रोडक्शन, दिस इज वॉट यू शुड टेक। योर लैंग्वेज कैन बी अ बिट सिंपलर if it's a 9 band essay, देखो, I don't want you to try to be a 9 band, go for a 9 band essay, क्योंकि अगर तुम्हारी vocabulary अच्छे से सूट नहीं करेगी तो वो डिक्रीज हो जाएंगे बैंड्स। राइट सिंपल, गुड इंग्लिश, डिसेंट इंग्लिश, जो वर्ड्स तुम्हें आते हैं, और अच्छे से अपनी इंट्रोडक्शन लिखो। जस्ट 2 सेंटेंसेस, दैट्स द की टेक अवे फ्रॉम दिस। उसके बाद हम रीजंस की बात करेंगे इन द फर्स्ट पैराग्राफ। वी विल यूज कनेक्टर्स। यहाँ पे इन्होंने कनेक्टर्स यूज करा, वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड देन उन्होंने बोला अनदर सिग्निफिकेंट कॉजेस। तो इनके ये 2 कनेक्टर्स हैं, दे आर क्लियरली विजिबल टू मी। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज कनेक्टर्स एंड गिव आर 2 points. Then we come to solutions. Again, we are going to give connectors. Firstly, additionally, and then finally. So we are also going to use connectors like that and give our points. And then we are going to write the conclusion. अब कंक्लूजन में ना इसने हमारे से एक थोड़ा सा डिफरेंट करा, जैसे मैं करता हूँ वैसे नहीं करा। कंक्लूजन में इसने पॉइंट्स भी लिखे हैं शॉर्ट में। For example, his points were, or AI's points were, overpopulation and environmental degradation इसके कारण हो रहा है। तो इसने यही लिख दिया, overpopulation and environmental issues के वर्सनिंग लाइफ क्वालिटी के ये 2 रीजंस है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे बोल सकते हो देर आर मेनी रीजंस, और देर आर मेनी रीजंस व्हाई द लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बिग सिटीज इज वर्सनिंग, क्यों खराब हो रही है, उसके बहुत सारे रीजंस है। However, many steps can be taken. The government can take many steps to address this problem and make cities better. तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है। और अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो तो तुम ऐसे पॉइंट्स लिख लो, बट मैं तुम्हारे को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स, वो पूरे पॉइंट को ऐसे शॉर्ट में एक वर्ड में नहीं बता पाते। दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट 1 word or 2 words जो तुम्हें उनके पॉइंट को अच्छे से समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर ही हैव कॉल्ड मूविंग ऑफ बिजनेसेस टू रूरल एरियाज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो तुम नहीं लिख पाओगे 1-2 वर्ड्स में, वो लंबा बन जाता है, तो खिंच जाता है।
तो मैं तुम्हारे को ये एडवाइस दूंगा, यू कैन बी सिंपल हियर, यू डोंट नीड टू फॉलो दिस अप्रोच। यू कैन जस्ट से कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और द गवर्नमेंट कैन टेक मेनी स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो तुम सिंपली ऐसे कर सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर, एंड नाउ वील गो बैक टू आर दिस थिंग। एंड आई पता है ये ऐसे बहुत इजी है, आई डोंट फील लाइक स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट। प्रोबेबली जब नेक्स्ट ऐसे आएगा तो हम लिखते हैं अपने आप और हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे एक और ऐसे भी डिस्कस हो जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर ऐसे। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू द नेक्स्ट ऐसे। चलो, एंड वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब पहले तो मुझे ये बताओ, इस ऐसे में पूछा क्या है? व्हाट आर द टू थिंग्स आस्क्ड इन दिस ऐसे? आई वांट योर ओपिनियन। रीजंस पूछे हैं, सॉल्यूशंस पूछे हैं, कि प्रॉब्लम्स पूछी हैं, सॉल्यूशंस पूछी हैं, क्या पूछा है? इज इट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, यस और नो? पहले तो ये बताओ। इज दिस अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, यस एंड नो? यस और नो? नो सर, नो, नो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। ठीक है, व्हाई इज इट नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे किरणजीत? इन्होंने पूछा है कि जे प्रॉब्लम के क्या रिजल्ट है, जैसे हम बोलते थे कि इसके नेगेटिव, विल दिस ब्रिंग आउट, हाँ तो ब्रिंग इसके अबाउट। नेगेटिव इफेक्ट्स तो पूछे हैं, तो हमारी एक वाली चीज तो पूछी है। दे हैव आस्क्ड, लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन एंड लेट मी शो यू। यहाँ पे ना कॉपी करते हैं। यू आर राइट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, बट कौन कौन पहचान पाया कि नहीं है? दैट्स माय कंसर्न। ओके, एंड ना आई रियली वांट यू टू बी मोर एक्टिव एवरीवन। थोड़ा सा ना मैं भी बोर हो जाता हूँ। इट्स बिन अ लॉन्ग डे फॉर मी ऑल्सो। अगर तुम ऐसे करोगे ना, तुम भी थोड़े लेथार्जिक रहोगे, मैं भी हो जाऊंगा। फिर हम, it's a limit to my ability to motivate you. Okay, there's a limit to my ability. Let me just fix this. 14. Okay. So, देखो मैंने तुम्हें पूछा था वो तीन चीजें पूछ सकते हैं. Either they can ask reasons and solutions, or they can ask reasons and problems, or they can ask reasons and problems and solutions. अब उन्होंने प्रॉब्लम्स तो पूछी हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस ब्रिंग अबाउट? तो उन्होंने प्रॉब्लम्स पूछी हैं कि इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स होंगी, जो कुछ नहीं होता बट नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। दे हैव आस्क्ड दिस, बट उनका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज नॉट सॉल्यूशंस और नॉट नाइदर नाइदर सॉल्यूशंस नॉर रीजंस। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं क्या गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए पीपल को टू लिव इन स्मॉल टाउन्स। यहाँ पे तुम्हारा एग्री या डिसएग्री आंसर है। हाँ, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। नहीं, आई डू नॉट एग्री दैट गवर्नमेंट शुड इनकरेज। तो इट्स एन एग्री डिसएग्री। द सेकेंड पार्ट इज एक्चुअली एग्री डिसएग्री आंसर और अ येस नो आंसर, जहाँ पे तुम्हें येस या नो में आंसर देना है, क्या गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So that's the second part of the question. It's not a problem solution essay. It's kind of the second part. I would rate it as a direct essay. ना किसी के साथ भी फॉर्मेट नहीं मैच कर रहा तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, डू यू वांट मी टू डिस्कस इट और मूव फॉरवर्ड, कि हम पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन करें कि ये भी कर लें डिस्कस? बताओ, शुड वी डिस्कस दिस और नो? Okay. Okay, sir. We will discuss this. ओके, विल डिस्कस इट। ठीक है, इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं सबसे कि मैं तुम्हारे को प्रॉब्लम बता दूं। तुम पहले बताओ कि जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो तो तुम बता सकते हो कि पहले तो तुमने अभी अभी करा, पिछले पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे। ज्यादा लोग जो बिग सिटीज में रह रहे हैं उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो करा। The shortage of houses, हाँ, वो increasing क्वालिटी of ऑफ लाइफ prices. खराब हो रही है, वही ना। क्वालिटी Hmm. ऑफ लाइफ खराब हो रही है कैसे? शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, इंक्रीजिंग रेंट, ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक प्लेसेस, इंक्रीजिंग कंजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पोल्यूशन, ये सारी तुम्हारी वर्सनिंग। तुम इसको अगर एक कैटेगरी में डालो, तुम इसको बोलो कि ओवर नंबर ऑफ पीपल, अर्बनाइजेशन के कारण, इसको चूजिंग टू लिव इन बिग सिटीज को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन के कारण जो पहली प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बिग सिटीज इज डिटेरियोरेटिंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी सिटीज में खराब हो रही है। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। और वो कैसे खराब हो रही है, देन यू कैन एक्सप्लेन। जैसे कि ओवर पॉपुलेशन के कारण रेंटल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। शी सेड हाउसिंग शॉर्टेजेस हो रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं,
देन क्वालिटी एयर क्वालिटी पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, तो इन ऑल इसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बिग सिटीज इज डिक्रीजिंग। व्हाट एल्स, और क्या हो रहा है इसके कारण जब ज्यादा लोग जा रहे हैं? कि इसी पॉइंट को अलग अलग करके लिखोगे कि इसके कारण सिटी में ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, सेकंड पॉइंट इसके कारण सिटी में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इसके कारण सिटीज में ये हो रहा है, कि तुम ये करना चाहते हो कि और कुछ करना चाहते हो, बताओ। कि देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो यू वांट टू राइट। सर इसके कारण जो विलेजेस है ना वो डेवलप नहीं हो पा रहे क्योंकि लोग तो वहां से निकल रहे हैं। हाँ, तो फिर वो विलेजेस में कौन रह जाता है फिर, तान्या? जो लाइक इलिटरेट लोग होते हैं वही रह जाते हैं। नहीं, इलिटरेट भी मूव कर जाते हैं, कौन रह जाता है तान्या? यू आर वेरी राइट, पर कौन रह जाता है? एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल रह जाते हैं। और फिर वो यस। किस चीज के शिकार हो रहे हेल्थ इश्यूज के। लोनलीनेस। हैं? लोनलीनेस, यस। लोनलीनेस ठीक है। तो दिस हैज अ बैड इफेक्ट ऑन पीपल इन रूरल एरिया, स्पेशली एल्डरली पीपल, बिकॉज उनकी यंग जनरेशन जॉब्स वगैरह के लिए और बेटर सर्विसेज के लिए कहाँ मूव कर रही है? अर्बन एरियाज। सो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, लाइक दे आर लेफ्ट अलोन इन रूरल एरियाज। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम रूरल एरियाज में शॉर्टेज हो रही है? किस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है फिर? वर्कर्स की। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो रूरल एरियाज में ही है, जो रूरल एरियाज में ही हो सकती है मेनली? विच इंडस्ट्री? फार्म। फार्मिंग। फार्मिंग। फार्मिंग, एग्रीकल्चर। सो ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि एग्रीकल्चर वर्कर शॉर्टेज भी हो रही है, बिकॉज पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम रूरल एरियाज। सो देर इज नॉट इनफ वर्क फोर्स फॉर एग्रीकल्चर। तो तुम ये भी पॉइंट एक लिख सकते हो इसको ऐसे सोचते हुए, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली तुम्हारी दो, कि तुम्हारी पहली प्रॉब्लम क्या थी, तुमने मेरे को बताया कि सिटीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तुमने रूरल एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, 2 पॉइंट्स हो गए। चलो, अगर हम दो ही रखते हैं अभी, तीसरे पे नहीं चाहते, तीसरा अगर हम सोचेंगे तो हम सोच भी लेंगे आगे जाके। शुड द गवर्नमेंट इनकरेज पीपल टू लिव इन स्मॉल टाउन्स? क्या तुम्हें लगता है गवर्नमेंट को स्मॉल टाउन्स के लिए इनकरेज करना चाहिए कि स्मॉल टाउन्स में रहो, बिग सिटीज में मत जाओ, हाँ या ना? सर यस। यस। अच्छा, अब क्यों? सर क्योंकि वो फिर बैकवर्ड एरियाज ही रह जाएंगे अगर वहां पे कोई नहीं रहेगा तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे वो एरियाज तो। ओके, तो इससे डेवलपमेंट होगी स्मॉल टाउन्स की, ठीक है। ओके, और क्यों करना चाहिए इनकरेज, और व्हाट एल्स? Why else should the government encourage people to stick back to small towns and not move to big cities? टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अम, ठीक है, स्मॉल टाउन्स में थोड़ा सा अम, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी इंडिविजुअल्स की, इसलिए भी गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। और तुम ये लिख सकते हो ना, जो ऊपर सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होगी। एक सेकेंड, जो ऊपर सारी प्रॉब्लम्स लिखी है वो नहीं होगी अगर पीपल स्टे स्मॉल टाउन। या सो मैं ये कहना चाहता था, ऊपर जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं दे वुड नॉट अकर इफ यू इनकरेज पीपल टू लिव इन स्मॉल टाउन्स। ऊपर जो तुमने प्रॉब्लम्स लिखी हैं वो इसलिए हो रही है ना क्योंकि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज जा रहे हैं, या स्मॉल स्मॉल टाउन से बिग टाउन्स जा रहे हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर तुम रूरल एरियाज में करोगे। पॉइंट, द प्रॉब्लम इज इसको ज़्यादा एक्सपैंड ना करना, नहीं तो रेपिटेशन लगेगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेंशन द सेम पॉइंट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ एज वेल, जहाँ पे तुमने प्रॉब्लम्स लिखी हैं। यहाँ पे तुम बोलो अगर हम उनको इनकरेज करते हैं, इससे ये भी होगा कि बिजनेसेस के लिए भी इजी होगा टू शिफ्ट टू रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स। देखो, बिजनेसेस को क्या चाहिए? बिजनेसेस को कस्टमर्स चाहिए। अगर स्मॉल टाउन्स में, जो तान्या का पॉइंट था वो यही था कि अगर स्मॉल टाउन्स में लोग नहीं होंगे तो वहां पे कौन आएगा? बिजनेसेस भी क्यों बिजनेस अपना सेटअप करेंगे? बिजनेसेस ऑल्सो नीड पीपल ना, दे नीड कस्टमर्स। सो अगर स्मॉल टाउन्स में लोग होंगे तभी बिजनेसेस भी स्मॉल टाउन्स में शिफ्ट होंगे। तो तुम ये बोल सकते हो। सो तुम बोलो इसलिए उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो बिजनेसेस भी शिफ्ट करें। फाइनली आई वुड से कि गवर्नमेंट के लिए भी इसको भी इसलिए करना चाहिए कि गवर्नमेंट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना रूरल स्मॉल टाउन्स में मच मोर इजियर है देन अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ पे प्रोवाइड करना? लार्ज सिटीज में। तो तुम ऐसे भी पॉइंट लिख सकते हो,
ठीक है. Do you want to add something to this essay? And then we'll do what? We'll copy paste this essay and check the points written by AI and then compare our points. So, एक बार हम अपने पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखते हैं, फिर हम देखते हैं हमने कितना अच्छा लिखा है. इफ आवर पॉइंट्स मैच विद एआई, मतलब हमारी थिंकिंग अच्छी है. ठीक है. सो पहला है वर्सनिंग वर्सनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज, इन बिग सिटीज. अब ये इसको दो तीन वेज में लिख सकते हो. पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण, प्राइसेस आर गोइंग अप, इन्फ्लेशन बहुत हाई है. ठीक है. रूरल एरियाज रेंटल प्राइसेस आर एक्सेसिव, एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. जैसे अब तुम देखो कनाडा की मेजर सिटीज़ में तो अब तुम घर ही नहीं ले सकते हो, भूल जाओ. ठीक है. आई नो दिस, माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू टेक अ हाउस, और 5 years में इतनी प्राइसेस बढ़ गई हैं कि अब पॉसिबल ही नहीं है. और तुम क्या बता सकते थे? हमने ट्रैफिक कंजेशन. ठीक है. और इनएडिक्वेट पब्लिक स्पेसेस. पब्लिक स्पेसेस क्या होती है? मतलब ज्यादा हमारे पास पब्लिक प्लेसेस नहीं है. अब तुम बताओ सरकारी काम कराने में टाइम क्यों लगता है? गवर्नमेंट को हम जितना मर्जी ब्लेम कर लें, पर हमारी कंट्री में प्रॉब्लम रहने वाली है बिकॉज वी हैव टू मच पॉपुलेशन. सो देर आर टू मेनी पीपल. 1 person टू सॉल्व एड्रेस अ प्रॉब्लम ऑफ 10,000 people. हाउ कैन वी एड्रेस इट? ये रहने वाला है. तो ये पॉइंट है. ठीक है. और सेकंड पॉइंट जो हमने करा था, हमने रूरल एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था. रूरल एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि वहाँ पे लोग रह जाते हैं एल्डरली एंड दे आर फेसिंग आइसोलेशन एंड डिप्रेशन. एंड तानिया सेड के इससे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉपुलेशन, और स्मॉल टाउन्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉपुलेशन. बिजनेसेस वहाँ पे सेटअप नहीं हो रहे, सो दे आर नॉट डेवलप, नॉट कमिंग टू दिस. अब हमने शुड द गवर्नमेंट इनकरेज, हमने बोला यस, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए. हमने पहला पॉइंट यही लिखा कि जो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स है वो इससे एड्रेस हो सकती हैं. फिर हमने सेकंड पॉइंट बोला कि इससे रूरल एरियाज की डेवलपमेंट होगी, वो भी सेकंड पॉइंट है. ठीक है. बिजनेसेस भी वहां पे तभी शिफ्ट होंगे अगर वहां पे लोग रहते होंगे. Businesses would all only shift to would also shift to rural areas or small towns if they have enough population to support that business. अगर अगर enough population ही नहीं है उस business को support करने के लिए, तो why would they shift to that place? ठीक है. For example, let's take an example of a bakery. You will not find a high class bakery in a rural area because there are not enough people to buy the number of cakes that a bakery needs to support itself. Like that. ठीक है. तो चलो, नाउ लेट्स सी द पॉइंट्स. अगर तुमने कुछ ऐड करना है मेरे को यहाँ पे बताओ, नहीं तो फिर हम चेक कर रहे हैं. एनी पॉइंट यू वांट टू ऐड हियर? एनी पॉइंट, एनी वन? तुम्हें लगता है कि ये सर हमें होना चाहिए, ये एआई बताएगा? चलो लेट्स चेक देन. ओके. सो पहला पॉइंट उसने यही लिखा है. To begin with, it results in overcrowding and pressure on public services. When too many people migrate to more metropolitan cities, hospitals, schools, and transport systems become overloaded. So इन्होंने बोला pressure on public services, which सर is नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा. Sorry, yeah. So, okay. Can you see now? यस सर. ठीक है. सो पहला है प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज. दिस इज अ पॉइंट दैट वी डिड नॉट राइट बिफोर एंड वी शुड हैव रिटन. मैंने बोला था कि जैसे हम गवर्नमेंट के कहाँ जाते हैं वहाँ पे हमें टाइम पे हमारे को मिलता नहीं है क्योंकि एक एक पर्सन है 10,000 के लिए. उन्होंने ये पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है दैट इट लीड्स टू प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज एज हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बिकम ओवरलोडेड. जितनी उनकी कैपेसिटी है ना हैंडल करने से, उतने ज़्यादा उनके पास लोग आ जाते हैं. अब तुम दिल्ली की बसों में देखो, लोग लटक के जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं लटक के? क्योंकि वो इतने के लिए नहीं थी, ओवरलोड हो रही हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है. सो देर इज़ अ प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज. तो ये पॉइंट है. ठीक है. और फिर जो सेकंड मैंने भी ये बोला था, रेजिडेंट्स ऑफन फेस लॉन्ग वेटिंग टाइम्स फॉर मेडिकल केयर, कंजेस्टेड रोड्स एंड इनएडिक्वेट एजुकेशनल रिसोर्सेज. दिल्ली में इतनी ज़्यादा वो सिफारिशें लगती हैं, एडमिशन नहीं हो पाती बच्चों की, पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो पाती क्योंकि इतना ज़्यादा है. अनदर मेजर प्रॉब्लम इज राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो इन्होंने ना
सिटीज के ही 3 पॉइंट्स लिखे, इन्होंने रूरल एरियाज के नहीं बताए। इन्होंने सिटीज की प्रॉब्लम्स को ही अलग अलग करके बता दिया। तो इन्होंने पहला पॉइंट लिखा सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज। सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो तुमने बोला था, डिमांड फॉर हाउसिंग इंक्रीजिंग शार्पली पुशिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड रेंट्स टू अफोर्ड अनअफोर्डेबल लेसेंस। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेन के कारण क्या होता है, मेनी फैमिलीज टू लिव्ड इन क्रैम्प्ड अपार्टमेंट्स और डिस्टेंट सबर्ब्स। क्रैम्प्ड अपार्टमेंट्स का मतलब बहुत कम। पता है, मैंने तो आई हैव सीन अ हाउस इन बॉम्बे जिसके अंदर किचन के 7 टॉयलेट है। लाइक यू कांट इवन इमेजिन, लाइक आई वुड से कि मैं बॉम्बे में रहूंगा ही नहीं, ऐसे घर में रहना क्या है। किचन के अंदर था वो, मतलब मुझे देख के कुछ हो रहा था, मतलब हाउ कैन देयर बी समथिंग लाइक दिस इनसाइड द किचन। आई वुड से अनहाइजीनिक की हद हो गई। पर ऐसे था, लाइक ऐसे है बॉम्बे में। पीपल आर लिविंग लाइक दैट बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक slum people. I'm talking about normal people, middle class families living in such conditions. ठीक है। तो पीपल लिव इन क्रैम्ड अपार्टमेंट्स और डिस्टेंट सबर्ब्स, जो डिस्टेंट थोड़ा दूर दूर जाके उनको रहना पड़ता है, फिर उनको पास में घर नहीं मिलता, फिर वो 3 घंटे रोज ट्रैवल करके काम पे आते हैं। फिर तुम सोचो 6 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही चले गए, रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल क्वालिटी। और फिर थर्ड इसने पॉइंट करा कि लार्ज सिटीज़ के कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, मतलब उनकी नॉइज वाटर एयर पोल्यूशन होता है, जिससे पब्लिक हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे, उन्होंने तीनों के तीनों सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे। पहला उन्होंने सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज, दूसरा लिखा राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड थर्ड उन्होंने लिखा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सॉल्यूशंस। ठीक है। तो इसने बोला गवर्नमेंट को करना चाहिए इनकरेज, वन इज टू इम्प्रूव। अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि क्यों करना चाहिए, उसने ये बताया कि गवर्नमेंट को कैसे करना चाहिए। तो उसने बोला कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दीज रीजन्स। तो हमारे वाला ऐसे ही हो गया, इन्होंने बोला ऐसे इम्प्रूव करना है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो जैसे अगर अच्छी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खोलो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ खोलो, इंडस्ट्रीज़ खोलो, तो पीपल विल नेचुरली लिव देयर। सेकेंड, उसने बोला कि गवर्नमेंट टैक्सिंग बेनिफिट्स एंड हाउसिंग सब्सिडीज दे सकती है टू दोज हु रीलोकेट। ये चाइना ने करा है। चाइना में वो क्या करते हैं, आपको ना एक कार्ड बना के देते हैं। अगर आप उस एरिया में जाके रहो ना, तो आपको जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो 10,000 की है, आपको 1,000 में मिल जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, पर बहुत सस्ती मिल जाएगी। ठीक है। मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, ऐसा नहीं होगा 1/10 होगा, पर बहुत कम पे मिल जाती है। उनका ऐसा सिस्टम है। उस सिटी में रहोगे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें करी हैं कि उन लोगों को सब्सिडीज दी है, गवर्नमेंट लोगों ने उनको बेनिफिट्स दिए हैं ताकि गवर्नमेंट वहाँ पे लोकेट करे। ठीक है। तो इससे पॉपुलेशन प्रेशर भी कम होगा और इससे ये करेगा, मतलब इससे बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट होगी। तो इसने ये बोला है कि सच इनिशिएटिव मस्ट बी लॉन्ग टर्म। तो पर ऐसे नहीं होना चाहिए बस थोड़े टाइम के लिए करे फिर बंद कर दिया, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। दिस लाइन आई डोंट थिंक एड्स टू योर ऐसे इन द एंड दैट मच। ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है। अब आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस ऐसे, बट लेट मी आस्क, व्हाई डिडंट यू राइट द रीजंस व्हाई गवर्नमेंट शुड डू इट? एंड ठीक है, तो मुझे तो ये था कि उसको रीजंस लिखने चाहिए थे। ओके। अब मेरे को बताओ तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट क्या पूछ रही है, अगर ये ऐसे है तो इज द क्वेश्चन आस्किंग अस द रीजंस, और इज द क्वेश्चन आस्किंग अस हाउ? बताओ। तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं? ये क्वेश्चन है। So reasons, हाँ। so reasons like this मेरे essay हिसाब is से तो asked for reasons. तो अब देखो, अब उसने बोला, अब देखो, अब उसने आंसर लिखा। उसका आंसर मुझे तो ठीक नहीं लगा बिकॉज उसने हाउ बताया। ठीक है। और मैंने उससे पूछा कि तूने हाउ क्यों बताया, एंड देन इट सेड, अब वो ये कह रही है कि हाउ, इट्स नॉट हाउ द गवर्नमेंट शुड डू इट। व्हाई नॉट हाउ?
So since none of the question is not asking for the methods, तो ये पूछना चाहिए why is it necessary, what benefits is bring, मतलब ये बताना चाहिए, और नो करना चाहिए तो गवर्नमेंट को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. सो तो मैं पूछता हूँ why did you write a how. चलो दिस इज बिकमिंग. देखो वो क्या बोल रही है, पढ़ो. Can anyone read this? When I answered your earlier question, I treated as a problem solution essay because the first ask what problems will this bring about. In many such IELTS question, the second part often is what can the government do. So I followed that pattern and included how the government encourage people. ठीक है. But strictly speaking, the question does not ask how. It asks should the government answer. So this means that the answer should focus on why the government should, why it should not. So yes, I included the how because I followed, but the why is more appropriate. तो वो ऐसे गलत हो जाता. तो अब उसने बोला है कि वो ऐसे गलत है. सो एनी टाइम whenever you use AI also, तो अपना दिमाग ऑन रखते हैं और अच्छे से देखते हैं कि AI भी गलती कर देता है. ठीक है. अब उसने यहाँ पे वाई के रीजंस बताए हैं. तो वाई के रीजंस उसने पहले ही बोले हैं. जो पहला रीजन है वही, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ज़्यादा इंप्रूव होंगी, तो रिड्यूस प्रेशर ऑन बिग सिटीज़, तो वो प्रॉब्लम होंगी वो कम होंगी. फिर सेकेंड पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, क्योंकि स्मॉलर टाउन्स में क्या होता है, लोगों के लेस पोल्यूशन होता है, लोअर लिविंग कॉस्ट होती है, लोअर कंजेशन होता है. सो इससे स्मॉलर टाउन्स, तो इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑनेस्टली बिलीव एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो बिलीव that the quality of life in your city is better than living in Delhi. Do you agree right now? If you're not living in Delhi, तो मैं नहीं लग रहा कि अच्छा है मैं दिल्ली में तो नहीं रह रहा. Do you feel like that right now? Yes, sir. Yes, I feel like that. मुझे तो बहुत ऐसे फीलिंग आती है. I'm so happy. I'm in a small town. I'm away from that pollution. मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ के 10-20 साल कम हो जाते हैं अगर मैं दिल्ली में रह रहा होता. ऑनेस्टली सेइंग, ये मेरा बिलीफ है. ठीक है. तो मेरे को लगता है मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, लोअर लिविंग कॉस्ट है, मेरा कुछ खर्चा ही नहीं. यहाँ पे दिल्ली आता तो मेरे कुछ पैसे नहीं बचने थे. ठीक है. कंजेशन कम है, मेरे को यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम में इतना कम ट्रैवल टाइम लगता है, वहाँ पे इतना अच्छा है. तो ये मेरे लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट को इसलिए भी करना चाहिए. फिर बोला कि जो तुम्हारा पॉइंट था, तान्या का पॉइंट था कि बैलेंस नेचुरल डेवलपमेंट होगी. स्मॉल टाउन्स ना अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं. सो अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे वो बिजनेसेस आएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और उनकी भी डेवलपमेंट होगी. सो आई थिंक दीज 3 पॉइंट्स आर इनफ. आई डोंट नीड वी डोंट नीड टू फोकस ऑन अदर पॉइंट्स. ठीक है. तो तुमने पहले पॉइंट्स जो थे, जो प्रॉब्लम्स हैं बिग सिटीज़ की, वो कम होंगी. सेकंड पॉइंट, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, क्योंकि स्मॉलर टाउन्स में ये प्रॉब्लम्स कम होती है, वहाँ पे बेटर एयर क्वालिटी होती है, लेस कंजेशन होता है, लेस ये सारी लेस लिविंग कॉस्ट होती हैं. सो इट दे हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड थर्ड पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ सच एरियाज. नहीं तो स्मॉल एरियाज, स्मॉल टाउन्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, and slowly these towns also die out. तो मैं, I don't know if you know this, US has many ghost towns. उनको घोस्ट टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जाओगे ना, बस घर है, घर खाली है, तुम जाके वहां पे वो रह सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. यू कैन लिव देयर परमानेंटली, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू. पर वहां पे लोग ही नहीं है, बिकॉज वहां पे इनफ बिजनेस नहीं था, उन एरियाज की डेवलपमेंट नहीं हुई. धीरे धीरे सारे लोग, जब बिजनेसेस नहीं खुले, धीरे धीरे लोग भी छोड़ के चले गए, काम ही नहीं था. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन चाइना टू सम एक्सटेंट. ओके, सो ये पॉइंट्स हैं. कैन यू डू दिस ऐसे? अच्छा, आप इस ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है प्रॉपरली? तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? ओके. सो कैन यू, अब हमारा ऐसे इस ऐसे का, मैं इस ऐसे का फॉर्मेट बताता हूँ एंड वी कैन चेक आवर ऐसे. ओके. सो मैं पहला आंसर करूंगा. व्हाट प्रॉब्लम, देयर आर मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, और दिस, इस चीज़ के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं ऑन द सोसाइटी और ऑन पीपल्स लाइफ. इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं. दैट विल बी द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में एक लाइन में ये लिखूंगा. फिर सेकंड क्वेश्चन है कि शुड द गवर्नमेंट इनकरेज. मेरे को लगता है हाँ, डेफिनेटली है. आई डेफिनेटली बिलीव द गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए टू इनकरेज पीपल टू शिफ्ट टू स्मॉल टाउन्स और टू माइग्रेट टू स्मॉल टाउन्स इंस्टेड ऑफ लिविंग इन बिग सिटीज. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, बॉडी पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में तो मैं यहाँ पे बताऊँगा
ये लिखूंगा कि व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस, मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट्स है बताऊंगा, इसके कारण बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। सेकंड वाले में मैं लिखूंगा देर आर मेनी रीजंस वाई गवर्नमेंट शुड इनकरेज पीपल टू लिव इन स्मॉल टाउन्स। मेरे हिसाब से बहुत सारे रीजंस हैं वाई आई बिलीव द गवर्नमेंट शुड इनकरेज पीपल टू लिव इन स्मॉल टाउन्स, और फिर मैं वो रीजंस दूंगा कि पहले तो जो ऊपर मेंशन प्रॉब्लम्स है सिटीज की वो इम्प्रूव होंगी। इन अदर वर्ड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव अ लॉट अगर हम पॉपुलेशन प्रेशर इन सिटीज को रिड्यूस करने में वो होते हैं सक्सेसफुल, इफ द गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन सिटीज, तो इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिटीज़ में कम होंगी। सो इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑलरेडी ऑलरेडी लिविंग इन सिटीज़। पहला रीज़न। सेकंड, स्मॉल टाउन्स में भी गवर्नमेंट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर कर सकती है टू इट्स सिटीजन्स। स्मॉल टाउन्स है जो हमने पॉइंट्स करे थे, वहाँ पे लेस पोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें हैं, इसके कारण मेरे को लगता है द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो गवर्नमेंट ने तो हमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। वो गवर्नमेंट चाहे हमें बोले कि शहर में रहो चाहे रूरल एरिया में रहो, गवर्नमेंट कैन डू इन बोथ वेज, गवर्नमेंट हमें दे सकती है। सो इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू डू दैट इन स्मॉलर टाउन्स, व्हाई नॉट। एंड थर्ड तुम रीज़न ये कह सकते हो जो हमने डिस्कस करा था, why the government should encourage it. What was the reason we did? Third reason? Let's see how many of you were attentive. अभी हमने पढ़ा है, वहां पे था कि गवर्नमेंट को क्यों इनकरेज करना चाहिए। जो उसका पॉइंट था तान्या का, डेवलपमेंट ऑफ। सर हाँ। सर एक तो एडमिशन्स का आपने बोला था कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो स्कूल्स में एडमिशन्स का प्रॉब्लम होगा। हाँ। और और आपने बोला था कि अगर पॉपुलेशन को अगर इनकरेज किया जाए कि वो विलेजेस में जाएं, वहाँ पे उन्हें चाइना की ओर से, मैं जैसे चाइना की एग्जांपल दी थी कि उनकी गवर्नमेंट उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री देती है, वहाँ पे घर भी सस्ते मिलते हैं, तो ऐसा वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बट ना एक बार अच्छे से ना मैं यहाँ एक बार मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में ना जो मैंने वो डिस्कस करा था, वो मैंने हाउ डिस्कस कर दिया था, क्योंकि जब हमने वहां पे आंसर लिखा उसने हाउ लिखा था कि गवर्नमेंट को कैसे इनकरेज करना चाहिए। वो मैंने इसलिए डिस्कस करा क्योंकि मुझे लगा कि हाउ भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि और ऐसे हैं जिसमें हाउ पूछा है। बट इन दी एंड आई आई होप यू रिमेंबर, हमें हाउ नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, वाई। ठीक है। वाई। हाँ। तो वाई, अब वाई के हमने रीजंस करे थे, वाई गवर्नमेंट शुड इनकरेज, बिकॉज इससे जो प्रॉब्लम्स हैं सिटीज में वो एड्रेस होंगी। जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर लिखी हैं, वी विल राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स राइट इन सिटीज, वो एड्रेस होंगी, कैन बी एड्रेस्ड थ्रू दिस। ठीक है। अगर पॉपुलेशन प्रेशर कम होगा सिटीज में, तो जो सिटीज की प्रॉब्लम्स हैं वो भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे तक सॉल्व कर सकती है। जैसे दिल्ली की पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेजर स्टेप है कि दिल्ली में और लोग ना आए। अब दिल्ली की पॉपुलेशन कम हो, अब बढ़े ना, कम से कम बढ़े ना, अगर कम नहीं हो रही कम से कम बढ़े ना, उससे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल ज़रूर कम होगा। ठीक है। सेकंड मैंने रीज़न बताया क्योंकि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए क्योंकि स्मॉलर टाउन्स में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इट कैन प्रोवाइड टू द, it can provide better quality of life. एंड थर्ड पॉइंट मैंने जो करा था, मैंने ये बोला था इससे स्मॉलर टाउन्स की डेवलपमेंट हो पाएगी। नहीं तो स्मॉलर टाउन्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि अगर वहाँ पे स्मॉलर इनफ पॉपुलेशन होगी तो ही बिजनेसेस वगैरह वहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है। अब मेरे को बताओ, वाई इज देयर अ मॉल इन जलंधर एंड नॉट इन फगवाड़ा? बताओ, टू ऑल माय टू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तुम बताओ, तुम्हें पता है ना, व्हाई इज देयर अ मॉल, व्हाई आर देयर बिग मॉल्स इन चंडीगढ़ एंड नॉट इन लाइक माय टाउन, क्यों नहीं है? पता है ना क्या रीजन है? तो पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा है, इधर कम है, हाँ, इसलिए इधर इतनी ना कस्टमर उन लोग को नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए भी हम लोग चाहते हैं ना स्मॉलर टाउन्स में हो ताकि बिजनेसेस यहाँ पे आए। अगर नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू एड्रेस। ठीक है। तो ये मेरे गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए था, इसलिए इनकरेज करना चाहिए था। और जो पहला था कि उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो जो पॉइंट्स उसने करे वो ये करा कि एक तो प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज, लाइक पब्लिक सर्विसेज लाइक बिकम ओवरलोडेड। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो पब्लिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, जैसे कि अब देखो तुम्हें याद है जब कोरोना आया था, when people from Delhi were coming to Punjab because दिल्ली के हॉस्पिटल्स में क्या नहीं थी, जगह नहीं थी। डू यू रिमेम्बर दिस? only
सुना है? याद है सबको? I don't know if you know, Punjab is very close to Delhi. Haryana is very close to Delhi. So people from Delhi were moving to Haryana and Punjab because they could not find a bed. Bed नहीं मिल रहा था. I know every one of you must have seen the situation during COVID time. The pressure on public services बढ़ जाता है. Hospitals, educational institutions, transport systems become overloaded. वो overloaded हो जाते हैं. उनके पास इतनी capacity नहीं होती. वो इतना handle नहीं कर सकते. तो ये चीजें बोलोगे यहाँ पे, बिकम ओवरलोडेड। ठीक है। और इसके कारण लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। क्यों? क्योंकि ये ओवरलोड हो जाते हैं, उनको वेट करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवलिंग में मुझे स्मॉल टाउन में इतना टाइम लग रहा है तो वहाँ पे ट्रिपल टाइम लगता है उतने ही डिस्टेंस के लिए। सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ट्रैवलिंग टाइम्स। ठीक है। और इंक्रीज वेटिंग टाइम फॉर हॉस्पिटल्स। वहाँ पे हॉस्पिटल आपको इमीडिएटली नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट आपको हफ्ते बाद मिलेगी। स्मॉल टाउन में आपको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीट्स नहीं मिलेंगी। तो पहला पॉइंट ये था, प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट वॉज इंक्रीज लिविंग कॉस्ट्स, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो रेंट लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, रेंटल प्राइसेस गो अप, अनअफोर्डेबल हाउसिंग हो जाती है। इसके कारण फैमिलीज को कैसे रहना पड़ता है? फैमिलीज हैव टू लिव इन cramped अपार्टमेंट्स जहाँ पे जगह नहीं है। और सो इसके कारण भी उनको प्रॉब्लम आती है। एंड थर्ड पॉइंट जो हमने करा था, थर्ड पॉइंट हमने पोल्यूशन वाला लिखा था, जिससे क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ने के कारण पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ते हैं बहुत। नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एवरीथिंग एंड एयर पोल्यूशन। दिल्ली में तीनों चीज़ें हैं। दिल्ली में नॉइस भी, तुम्हें पता है मेरी घड़ी है, एप्पल वॉच है। व्हेन आई गो टू दिल्ली राइट, अब तुम्हें पता है ये एप्पल वॉच क्या बताती है? एप्पल वॉच बहुत बताती है कि नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर इसमें आधे घंटे से ज़्यादा करा ना तो मैं डेफ हो जाऊंगा, मतलब टेम्प्रेरी डेफनेस हो जाएगी, ये बुरा है मेरे लिए। ठीक है। दिल्ली में वो स्टॉप ही नहीं होता। दिल्ली में वो हमेशा ही ऑन रहता है सेटिंग। दिल्ली में वो कहती है बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, यहाँ से दूर जाओ। अब मैं और कहाँ जाऊँ दूर? ठीक है, कहाँ जाऊँ? घर के अंदर भी कई बार इतना नॉइज़ होता है, वो कहता है कि नहीं, नॉट सूटेबल। यहाँ पे इफ़ यू लिव इन दिस कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल बिकम टेम्पररी डेफ और मे बी इवन परमानेंटली। सो नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर पोल्यूशन ऑल्सो, दिल्ली की रिवर्स का तुम्हें हाल पता ही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन पीपल्स हेल्थ। सो ये तीनों हमने प्रॉब्लम्स लिखी थी। ठीक है। एंड हमने ये तीनों ऊपर वाले क्या लिखे हमारे, जो गवर्नमेंट को क्यों करना चाहिए। सो आई होप दिस essay is clear. We are moving to the next essay now. If anyone has any doubts, please stop me. Otherwise, we are moving to the next essay. Okay. जे तू अपना हो नहीं Okay. Let's move on. Okay. अब यहाँ पे क्या पूछा है ये बताओ. Is it a problem solution essay? If yes, what is asked here? What are the two things that are asked here? सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन है Problem solution essay. Yes. And क्या दो चीजें क्या पूछी अलमास? सर क्वेश्चन मीन्स हाँ. In this question, what are the two things they've asked? ओके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन Problems and solution. They have not asked the reasons. उन्होंने नेगेटिव इफेक्ट्स पूछे हैं कि क्या हो रहे हैं। अब हमने कर लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स, अब हमें ऑन नहीं करने चाहिए। मेरे को लगता है वी हैव डन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे तुम्हारे ना, अब देखो, कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन बोथ प्लेसेस। यहाँ पे अब तुम दूसरी जगह के भी बता देना जो हमने हमने डिस्कस करे थे, लाइक पीपल फेस, एल्डरली पीपल, आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। एंड एक और रूरल एरियाज में हमने प्रॉब्लम करी थी कि क्या फेस कर रहे हैं वो? शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर। यस, एंड स्पेशली विच लेबर? एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है। तो मैं पता है यहाँ पे पंजाब में इतनी शॉर्टेज है वर्कर्स की, एग्रीकल्चर लेबर की, कि वो ऐसे लगाते हैं कि चाय मिलेगी, रेडियो मिलेगा, सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, मतलब वो इतना कुछ, मतलब देख गिव ऐसे। ऐसे लोग खड़े होते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर ये बोर्ड लगा के कि आई नीड अ वर्कर
जब ट्रेन्स आती हैं, जहाँ जहाँ से लोग काम करने वाले आते हैं, कि उनको किसी भी तरीके से उन्होंने मनाना है कि काम कर लो, बिकॉज देर सो मच शॉर्टेज, दे आर ऑल्सो विलिंग टू पे हायर, विच इज़ इन अ वे गुड, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कम पे करते हैं, बट एनीवेज, मतलब ऐसे सिचुएशन आ रही। ओके, एंड what measures can be taken to address this problem? I think we can do the measures. क्या क्या measures हैं हमने अभी करे हैं, बताओ क्या solutions हैं। अब वो चाइना वाला पॉइंट लिखना, क्या लिखना है बताओ। पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन, एनकरेजिंग बिजनेसेस टू शिफ्ट टू रूरल एरियाज, ठीक है, इससे उनकी डेवलपमेंट होएगी, और वहाँ पे बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स वगैरह को, मतलब वहाँ पे रिलोकेट करना चाहिए गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में। इफ़ पीपल गेट बेटर सर्विसेज इन रूरल एरियाज, दे वुड नॉट फील द नीड टू शिफ्ट टू अर्बन एरियाज। अगर उनको बेटर सर्विसेज एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कहाँ पे, रूरल एरियाज, why would they shift to urban areas, क्यों जाना चाहेंगे वो urban areas? So first solution is this. Okay, second solution गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लोग शिफ्ट ना करें, एक तो रूरल एरियाज को डेवलप करके, दूसरा स्टेप क्या कर सकती है गवर्नमेंट, बताओ। बताओ, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप आई फील, एंड आई थिंक यू कैन राइट इट, एंड ये चाइना ने करा है बहुत सक्सेसफुली। Okay, this is a step that I believe. So government should build fast up public transportation between rural areas and urban areas, ताकि people can come to work to rural urban areas without needing to relocate. अब चाइना में ना इतनी फास्ट ट्रेन्स हैं कि 300 किलोमीटर पर आवर। अब लोग चाइना में जो मेन सिटीज़ है वहाँ से 300 घंटे दूर से रोज़ काम करने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत फास्ट है। तो सेकंड सोल्यूशन आई वुड से कि गवर्नमेंट को फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाना चाहिए, लाइक मेट्रोज connecting, or like metros and high speed rails connecting rural areas to urban areas, so people can directly daily commute from rural areas to urban areas without the need to shift there. Is it clear this point? Yes, sir. ठीक है, हमारे यहाँ पे ट्राई करा था, इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, वी आर ट्राइंग इट स्टिल, जयपुर के वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर स्लोली ट्राइंग। ठीक है, व्हाट एल्स कैन बी डन ताकि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया शिफ्ट ना हो, और क्या स्टेप करा जा सकता है, बताओ। अभी चाइना वाला पॉइंट लिखो ना, कि रूरल एरियाज में गवर्नमेंट को हाउसिंग सब्सिडीज वगैरह देनी चाहिए, और वही बतानी चाहिए फ्री पब्लिक सर्विसेज देनी चाहिए रूरल एरियाज में। तुम ये पॉइंट कर सकते हो, पहले तो तुम बोलो कि बहुत ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਲਾਈ ਆ पहले ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वेट। ओके, पहला पॉइंट हमने करा था कि हम रूरल एरियाज में हम लोगों को शिफ्ट करवाएंगे। सेकंड पॉइंट हमने ये करा है, हम रूरल एरियाज को बिजनेसेस वगैरह करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी। थर्ड पॉइंट तुम ये कह दो कि रूरल एरियाज में पब्लिक सर्विसेज वगैरह इंप्रूव करके, फ्री पब्लिक सर्विसेज वगैरह दे के, ताकि पीपल डोंट पीपल आर अट्रैक्टेड टू मूव टू स्मॉलर टाउन्स। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि चाइना में दे गिव सब्सिडाइज्ड हाउसिंग इन रूरल एरियाज, ठीक है, फ्री पब्लिक सर्विसेज इन रूरल एरिया, सो पीपल डोंट फील द नीड टू ट्रैवल टू बिग सिटीज। तो उनको फील नहीं होता कि बिग सिटीज नाम है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ओके सॉरी, ओके लेट्स मूव ऑन। अब एक ऐसे का पूरा पैटर्न कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक मैंने पैटर्न नहीं अच्छे से लिखा, एंड आई एम वरीड दैट इफ आई डोंट राइट इट यू माइट मेस इट अप। सो एक बार प्लीज पैटर्न करते हैं, लेट्स पिक अप अ नेक्स्ट ऐसे वेयर वी डू द पैटर्न एंड देन वी कैन एंड द क्लास ऑल्सो। Okay, let's do this. There are an increasing number of people who do not know their neighbors. What causes this situation and how to solve it? पहले तो मुझे तुम बताओ, तुम्हें अपने नेबर्स के बारे में पता है कि नहीं? किस किस को नहीं पता है? How many of you do not know your neighbors? खुशबू, पता है नेबर्स के बारे में कि कौन है, क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है? Not really, sir. Not really. Do you live in a big city? Yeah, sir. Actually, I live in Ahmedabad. Okay.
Next, Lapreet, do you know? No, sir. No? Almas, No. do you know your Sir, I neighbors? know. You know? Yes, Just sir. okay. I've asked three people. One of them knows, two of them don't know. So हम मान सकते हैं कि जो लोग नहीं जानते वो बढ़ रहे हैं. This is true. अब what causes this situation? How to solve it? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते? अब बताओ. चलो, tell me. What are the reasons? पहले हम अपने reasons करेंगे. We'll check with you know ChatGPT later. People are busy, sir. People are busy. ठीक है. Yeah. इससे क्या होता है? इस पॉइंट को एक्सपैंड कैसे करेगा बता. People are busy. They don't have time to spend each other, so that's why they don't know how. Like ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ neighbors ਬਾਰੇ. ठीक है. सो So तो like हाँ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ठीक है. गुड. मैं बस इसमें ये करता, मैं ये ना बिजी की जगह मैं लिखता कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, तो वो घर ही बहुत लेट आते हैं. ठीक है. सो दे स्पेंड या अ लॉट ऑफ टाइम एट द वर्क प्लेस एंड दे स्पेंड अ वेरी लिटिल टाइम एट होम. अगर वो होम में करेंगे तब भी नेबर्स के साथ थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन हो जाएगी, पर वो घर में टाइम ही बहुत कम बिताते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पीपल इन बिग सिटीज दे स्पेंड मोर देन 10 12 hours आउटसाइड द होम. सो दैट इज अ बिग रीजन वाई दे डू नॉट नो देयर नेबर्स. ठीक है. बिजी है, पर बिजी में मैं ये बोलूंगा लॉन्ग वर्किंग आवर्स बोलूंगा इंस्टेड ऑफ सेइंग बिजी. ओके. एनी अदर रीजन व्हाई पीपल डू नॉट नो देयर नेबर्स? So first So reason, they don't want to interfere, you don't want to interfere. Okay. want to give S- them personal my space. ठीक है. They don't want to interfere in their personal lives. People are more reserved nowadays. Reserved का मतलब होता है वो ज़्यादा खुल मिलते नहीं हैं. They don't want to interfere in other people's public life. That is why they do not know their neighbors. ठीक है. Somebody else was telling me one more point. Who else? migration, sir, because people not live for longer time on same house. Okay, so that's a very good point. बहुत अच्छा point है. And I could not think of this point honestly, किरणजीत. तो point ये है कि people are बार बार अपनी job और अपनी place of residence change कर रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे वही लोग रहते हैं, बार बार लोग बदलते रहते हैं क्योंकि लोग अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज करते रहते हैं. एक साल इधर है, फिर आगे चले गए, फिर उधर चले गए. तो इसके कारण भी क्या होता है कि दे डू नॉट नो देयर नेबर्स बिकॉज दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दैट एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे हैव बीन लिविंग इन दैट एरिया फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम. राइट किरणजीत, ये था ना पॉइंट? Yes, sir. ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ हाँ, है ना. इट्स अ गुड पॉइंट. ठीक है. एंड आई कुड नॉट थिंक ਹਾਂਜੀ पॉइंट ऑनेस्टली, मैं नहीं सोच पाता. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अच्छा, आप हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एनी एनी अदर पॉइंट नरेंद्र, डू यू हैव अ पॉइंट? यस आई हैव सम क्योंकि सर वर्टिकल ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਅਰਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇਬਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ. ओके. वर्टिकल बिल्डिंग्स के कारण भी ठीक है. जो तेरा पॉइंट है ना, हम ये बोलें कि नॉट इन पब्लिक प्लेसेस. जैसे पहले पार्क्स वगैरह होते थे, अब क्या है, जैसे अब वर्टिकल बिल्डिंग्स है ना, तो ऐसे नहीं कि साथ में पार्क है जहाँ पे सारे आके खेल रहे हैं. अब वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं तो अपने फ्लैट के अंदर ही रह रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस है नहीं. तो मे बी दे आर नॉट नोइंग देयर नेबर्स, इसलिए जैसे ऐसे कि हाँ उन्होंने, जी है ना. तो हाँ मे जी सर. द रीजन. ठीक है. एक और रीजन जो मेरे को लगता है जो तुमने नहीं बोला इज ऑनलाइन शॉपिंग. इसलिए क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो हम घर के बाहर कम निकलते हैं. वी डोंट गो. जैसे a lot of neighbors I meet is when I go to the local market to buy things. वो भी मिल जाते हैं. मैं भी वहां पे जाता हूँ, हाय हेलो हो जाती है. अब हम जाते ही नहीं है, हम सारा कुछ ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, घर आ रहा है. तो फिर जब ऑनलाइन जाना ही नहीं तो फिर ये भी प्रॉब्लम है. मतलब बाहर जाना ही नहीं है तो फिर इसके कारण भी नहीं हम नेबर्स को मिल रहे. ठीक है. अच्छा, आप सोल्यूशंस बताओ. व्हाट आर द सॉल्यूशंस? कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि नेबर्स को जाने लो? कैसे हम इंश्योर कर सकते So सर पब्लिक society पार्क्स में होने चाहिए और उसमें सब फेस्टिवल्स होने चाहिए जैसे कि वहाँ पे लोकल फेस्टिवल्स होते हैं जैसे हमारे पंजाब में लोहड़ी होती है, तियां का त्योहार होता है तो वो सब चीज़ें ना
मतलब फेस्टिवल के रूप में एक एक दो दो तीन तीन दिन मनाने चाहिए, ताकि लोग इकट्ठे हों और उनको पता चले एक दूसरे के बारे में। और गुजरात में सर डांडिया होता है, जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, जो मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं। तो उनके वहाँ पे ना 7 7 दिन का सर फेस्टिवल चलता है वो डांडिया का। तो इसलिए वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है, एक दूसरे से मतलब एक भाई बहन की तरह रहते हैं, ताकि वो हर रोज या उस फेस्टिवल के लिए कि हम वहाँ पे लड़े, हम वहाँ पे एक सेलिब्रेट करें, अगर हमारा का मुंह वगैरह बना होगा तो हम उस दिन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो उनमें बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है सर, इसी फेस्टिवल के कारण सर। इट्स अ गुड सर पॉइंट। ऐसा वो बताते हैं। हाँ नहीं है, मुझे लगता है and मतलब दे नो देयर नेबर्स, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। एंड मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी इनकरेज करना चाहिए दैट पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। एंड लाइक पब्लिक प्लेसेस होनी चाहिए, लाइक पार्क्स वगैरह। एवरी कम्युनिटी, एवरी सोसाइटी शुड हैव अ पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, जहाँ पे पीपल, लोकल पीपल, नेबर्स कैन कम एंड मीट ईच अदर। ये सब कुछ होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो डेफिनेटली ये होना चाहिए। और क्या करा जा सकता है बताओ? सो वन स्टेप इज दिस, और वहाँ पे फिर ऑर्गेनाइज करा लो सब कुछ, हर पॉइंट, इन दिस पॉइंट। And second point, what helps? How can we make sure people know their neighbors? Anyone? The new activities should be introduced in the society, such as yoga classes or dance classes, so that people can interact with each other in the evening. ठीक है, चलो। नेबर्स को इकट्ठे मिलके एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, नेबरहुड ग्रुप्स को, जहाँ पे लोग आपस में मिल सकें। ठीक है, आई एग्री विद दैट पॉइंट। व्हाट एल्स कैन बी डन? सर क्या ये बोल सकते हैं कि जैसे अभी सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो ग्रुप बने होने चाहिए, कि जैसे विलेज में कोई भी बात होती है तो वो ग्रुप में पता चले। वेरी गुड। दे आर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। दे आर कनेक्टेड, नहीं, दे शुड बी कनेक्टेड। दे शुड, या वेरी गुड पॉइंट। उनको कनेक्ट होना चाहिए, तो ऐसे सोशल मीडिया एप्स वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने चाहिए नेबर्स के, फिर ऑल द ग्रुप व्हाट्सएप नेबर्स आर एडेड, सो दैट एटलीस्ट दे नो ईच अदर। एंड अगर कोई नेबर्स को प्रॉब्लम्स है, दे कैन पोस्ट अ मैसेज एंड इट कैन बी शेयर बिटवीन ऑल द नेबर्स। आई एग्री विद दिस। नाउ लेट्स सी इफ चैट जीपीटी एग्रीज विद आवर पॉइंट्स, और ही सेज कि नहीं, तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं। चलो देखते हैं वो अपने क्या पॉइंट्स लेता है। वो तो फिर मैं बताऊंगा उसके अच्छे हैं कि नहीं। But chalo, let's see. What does it say? So पहला यही है, busy and fast-paced lifestyle of people. Many people work long hours, commute for extended people, or juggle have little time or energy with सर interact. स्क्रीन वो स्टिल फर्स्ट वाली ही है। ठीक है, ओके। सो पहला पॉइंट हमारा मैच कर रहा है। पहला पॉइंट हमारा भी था बिजी एंड फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। इट हैज यूज्ड अ बेटर वर्डिंग। दे वर्क लॉन्ग आवर्स, commute for extended periods, or juggle multiple responsibilities, leaving little time and energy to interact with living people, neighbors. तो वो कह रहे हैं कि उनके पास ना तो टाइम बचता है, ना तो एनर्जी बनती बचती है। यू नो, माई डे नाउ डे स्टार्ट्स एट 8। माई पेरेंट्स, मतलब पहले नहीं था ऐसे। मेरा आजकल दिन 8 बजे शुरू हो रहा है, जो मेरी पहली ऑनलाइन क्लास होती है स्पीकिंग की। एंड देन आई आई गेट फ्री एट अराउंड 6-6:30। तुम्हारे साथ फ्री होता हूँ अगर मैं रीडिंग क्लास भी लूँ। देन आई प्ले टेबल टेनिस। सो 8:30 जाके मेरे को फ्री टाइम मिलता है। तो ऐसे लिटिल एनर्जी है मेरे पास, टाइम नहीं है मैं जाके अपने नेबर्स के साथ बात करने लगा हूँ 8:30। ठीक है, लिटिल टाइम एंड एनर्जी। गुड पॉइंट। एडिशनली डिजिटल कम्युनिकेशन के कारण भी रिड्यूस हुआ है। तो पीपल रादर देन गोइंग आउट, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, वी डिड नॉट राइट दिस पॉइंट। वी द पॉइंट इज कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है ना, उनमें भी चेंज आ गया, लाइक आर लेजर एक्टिविटीज़ में। अर्लियर वी डिड वॉट, वी वेंट आउटसाइड, वी डिड आउटडोर एक्टिविटीज़। लाइक जब मैं छोटा था, आई यूज टू गो आउट एंड प्ले स्पोर्ट्स विद नेबर्स के बच्चे आपस में मिलके स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। आजकल बच्चे क्या पसंद करते, दे प्रेफर स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया or watching movies online rather than engaging with others. Third point is her point, frequent relocation and high rise apartment living। तो दोनों का पॉइंट मिक्स हो रहा है, नरेंद्र का भी और किरण का भी। इन्होंने एक पॉइंट करके लिखा है, रेजिडेंट्स मूव, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं फॉर वर्क और एजुकेशन, मेकिंग नेबरहुड्स फील टेम्पररी
and reducing the motivation to build strong relationships. पर ये जो वर्डिंग लिखी है ना, इतनी प्यारी लिखी है ना, तो हमें लगता है हमारा नेबरहुड टेम्पररी है, इसके कारण हमारा मोटिवेशन ही नहीं रहती कि हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएं. सो विच इज़ वेरी गुड पॉइंट कि पीपल अपना ऑफन चेंज कर लेते हैं प्लेस ऑफ लिविंग एंड रेजिडेंस, इसलिए दे फील लाइक नेबरहुड्स आर टेम्पररी and they don't have the motivation to build like strong relationships with their neighbors, क्योंकि लगता है ये तो थोड़े समय के लिए, मैंने 6 महीने के बाद तो चले जाना है, मैं क्यों टाइम इन्वेस्ट करूँ, एनर्जी इन्वेस्ट करूँ इन नोइंग माई नेबर. Which is absolutely right. I have lived in Delhi for 5 years and I'll be honest with you, I did not know my neighbors. मैं रहा हूँ, पहले रहा हूँ, तब मेरे को नहीं पता थे अपने नेबर्स. ओके, अब बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं. फर्स्टली, जो तुमने पॉइंट बोला वही, लोकल अथॉरिटीज एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑर्गेनाइज नेबरहुड इवेंट्स सच एज festivals, cleanliness drives and sports activities which create natural opportunities for residents to meet one another. तो ये सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया फेस्टिवल्स का, क्लीनलीनेस ड्राइव्स का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, लाइक क्रिकेट मैच रखा जा सकता है एवरी वीकेंड, जैसे तुमने डांडिया बोला वो फेस्टिवल ही है ना. देन यू गेव द एग्जांपल. अब यहाँ पे तुम एग्जांपल दो. फॉर एग्जांपल गुजरात के एग्जांपल दे दो कि गुजरात में कुछ फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करे जाते हैं ओवर ओवर अ वीक, जस्ट टू इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन नेबर्स, like festivals like Dandiya are celebrated. It's a good point, you can write. Secondly, जो तुम्हारा पॉइंट था वही है, पार्क्स वगैरह, कम्युनिटी हॉल्स एंड कम्युनिटी सीटिंग एरियाज बनाने चाहिए जिसमें कैजुअल इंटरेक्शन होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है बेटर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, मतलब वर्क प्लेसेस को भी कम घंटे काम करवाना चाहिए, मतलब जल्दी छोड़ देना चाहिए, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाने चाहिए. पर ये पॉइंट इतना कौन मानेगा, मुझे पता नहीं कि बिजनेसेस मानेंगे कि नहीं. Finally, awareness campaigns can benefit. I don't think the last point also you can write. थर्ड पॉइंट तुम लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस so that people are able to spend people reach their homes on time and people do not spend extended time at work. So गवर्नमेंट को ये भी चीज़ें करनी चाहिए. तो हम ये हमारे 3 पॉइंट्स कर लेते हैं. इज दिस ऐसे क्लियर? बताओ. जो हमने करे थे पॉइंट्स और जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं बहुत सारे सिमिलर ही हैं, ठीक है. एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. मैंने कोई ऐसे लिखा नहीं है. मैं लिखूं कि नहीं, क्या आप डू यू थिंक यू कैन राइट ऑन योर ओन, कि शुड आई राइट? बताओ कि कैसे पैटर्न लिखना है. सॉरी माय इंटरनेट इज नॉट स्टेबल. शुड आई राइट दी ऐसे और वुड यू बी एबल टू राइट इट ऑन योर ओन? तुम्हें पैटर्न पता है, बताओ. So we can write. You can write. Okay, so I'll pick. And do you want me to give one of the essays we covered today, or would you pick up an essay on your own? तुम बताओ कि तुम चलो एक काम करते हैं, 2 essays लिखवाता हूँ, एक जो तुमने मेरे साथ करा है और एक जो तुम्हें अपने आप करना है. जो अपने आप करना है ना, उसके पॉइंट्स तुमने मेरी बुक में भी नहीं देखने, तुमने एआई में भी नहीं देखने, तुमने अपने आप करने. जो भी लिखोगे लेट्स सी, यहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होगी. तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि उसकी थिंकिंग डेवलप करना. अच्छा, इसका पूरा ऐसे मत लिखो, इसके सिर्फ पॉइंट्स लिख के आओ मेरे लिए इस ऐसे के. लेट्स सी योर थिंकिंग. मेरे को थिंकिंग डेवलप करनी है ना, लेट मी डेवलप द थिंकिंग. सो द ऐसे आई विल टेक इज, लेट्स सी. और जो तो मेरे को लिखने के लिए देना है वो एग्रीकल्चर वाला देना है, कि क्या गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल एरियाज टू रूरल अर्बन एरियाज. वो ऐसे तुमने लिखना है, और एक और ऐसे के पॉइंट्स लिखने हैं जो मेरे को चाहिए पॉइंट्स, बट ऑन योर ओन. मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो पॉइंट्स, जैसे कि अभी सोचा. एंड सी, किरणजीत गेव सच अ गुड पॉइंट, सम ऑफ यू गेव. जो एप्स वाला पॉइंट था मुझे तो वो भी अच्छा लगा था. दे डू नॉट हैव दैट पॉइंट बट आई लाइक दैट पॉइंट एज वेल. सो अच्छे पॉइंट्स तभी आते हैं अगर हम अपने ब्रेन को टाइम देते हैं सोचने के लिए. इफ़ यू डोंट गिव अ ब्रेन टाइम टू थिंक, हाउ कैन इट कम अप विद गुड पॉइंट्स? तो डू नॉट बी वरी. ओके, नहीं ये वाला ऐसे नहीं है.
चलो मैं तुम्हारे से ना तब तक जब तक मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ, लेट मी जस्ट आस्क यू। चलो ये वाला ऐसे है, वो बाद में पूछते हैं। फार टू लिटिल हैज बिन डन टू प्रिवेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम डाइंग आउट, ऑल्दो पीपल हैव बिन अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी ऐसे अच्छे से सुनो। बहुत कम करा गया है, फार टू लिटिल का मतलब बहुत ही कम करा गया है एनिमल्स को मरने से बचाने के लिए, ऑल्दो हमें इस प्रॉब्लम का बहुत समय से पता है। वाई डू पीपल डू सो लिटिल अबाउट इट? पीपल इनको बचाने के लिए कुछ ज़्यादा क्यों नहीं करते, क्यों लिटिल एक्शन ले रहे हैं? एंड गिव योर सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जब मैं पूछता हूँ ना सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लोग लिखते हैं अवेयरनेस। क्वेश्चन में ही लिखा है कि लोग अवेयर हैं, लोगों को पता है कि वो मर रहे हैं, तब भी लोग कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे या ना जो ये सोल्यूशन दोगे कि अवेयर होना चाहिए, वो अवेयरनेस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। डू नॉट राइट कि पीपल को इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करना है। अवेयर तो लोग हैं। हाँ, अगर तुम ये लिखोगे कि अवेयरनेस बिल्ड करनी चाहिए कि एनिमल्स के मरने से हमारी लाइफ के ऊपर क्या नेगेटिव होगा, वो एक अच्छा पॉइंट ज़रूर हो जाएगा। कि अवेयरनेस अबाउट कि लोगों को ये नहीं पता कि एनिमल बनने से हम कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। लोगों को लगता है एनिमल्स मर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे को थोड़ी कुछ नुकसान हो रहा है। दैट इज़ वन पॉइंट यू कैन राइट कि अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डाइंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि उससे हमारी ज़िंदगी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म में। सो राइट दैट, बट डू नॉट राइट अवेयरनेस अबाउट देम डाइंग। ठीक है, सो दिस इज दी ऐसे जिसके मेरे को पॉइंट्स चाहिए। क्या यही वाला ऐसे अगर लिखना भी चाहते हो, यही ऐसे लिख सकते हो, या विश। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट ऐसे, आई थिंक यू कैन राइट इट। आई एम शेयरिंग इन द ग्रुप, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। ओके, एंड it's there. Please submit your homework. Please write it. Some of you have started writing. I'm very happy. Some of you are still not writing. I really want you to write. ठीक है, and we'll continue tomorrow. Reading की class अभी लेनी है. Give me 10 minutes and then we'll start with the reading class for today. And writing के लिए homework है. We'll continue tomorrow. It's 5:35, 6:35, 5:45 we'll start with the reading class. Okay. Any doubts? Anyone has any issues? मेरे को बताओ। तुम्हें स्क्रीन दिख रही थी ना, मेरे साथ ही थे ना? यस। Sir, do I need to write the points only or a full-fledged essay? अगर ये ऐसे लिखना है तो पॉइंट्स पूरा ऐसे, अगर एक और ऐसे लिखना है तो फिर पॉइंट्स। ठीक है सर। आई वॉन्ट एटलीस्ट वन ऐसे रिटन। अगर इसी में पूरा ऐसे लिखना चाहते हो लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट इट रिटन। ठीक है, कल भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। कल हम ये कंटिन्यू करेंगे, मगर कल हम डिफरेंट टाइप्स पे जाएंगे, जहाँ पे कारण और सोल्यूशन नहीं, जहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन है। वी आर प्रैक्टिसिंग दिस। मेरे को सारे एसेस करवाने हैं। मैंने अभी तक एडवांटेज डिसएडवांटेज करवाया है। मैंने सेकंड ऐसे जो करवाया वो करवाया है डिस्कस ऐसे। थर्ड ऐसे जो है हम ये करने, नॉट एडवांटेज डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। देन वी डिड दिस ऐसे, डिस्कस ऐसे ऑन संडे, एंड टुडे वी हैव डन दिस। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। मेरे को एक बार सारे ऐसे ऐसे रिवाइज कराने, एंड वी विल सी हाउ इट गोज। ठीक है, चलो। एनी अदर बस ठीक है, सी यू इन 10 minutes। 10 minutes विल स्टार्ट फॉर रीडिंग। थैंक यू। You're welcome.